morning, students. So from today I'm bringing a new series for you students, those who are preparing for NEET PG, and this is basically an MCQ series in which daily I'll be discussing 20 MCQs with you, and these MCQs are coming from the past year questions, the most commonly asked topics, and along with the MCQ with the answer we'll also discuss the pharmacology, pharmacokinetics, dynamics, and other things which are related to that particular MCQ. So do watch this series, and you are surely going to get benefited a lot by these questions. So now we start with the MCQ part 1, and in this now let's see the MCQs one by one. In every video I'm going to share 20 best MCQs from the past year questions, and then we'll see them, the pharmacology also behind them. So the first MCQ says, which statement is incorrect regarding Samter's triad? So Samter's triad basically क्या होता है? देखो, Samter's triad is actually aspirin exacerbated respiratory disease, which is a chronic condition characterized by 3 key features: asthma, nasal polyps, and sensitivity to aspirin and other NSAIDs. So अब इसमें इनकरेक्ट, यहाँ पे देखो कैच क्या है, यहाँ पे आपको समझना है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहे हैं. तो यहाँ पे है इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस है इनकरेक्ट. ओके, तो इज इट ओनली ट्रिगर्ड बाय एस्पिरिन? नो, इट इज़ ट्रिगर्ड बाय अदर NSAIDs ऑल्सो. तो ये आंसर हमारा बेस्ट बैठ रहा है. दूसरे देख लेते हैं. अदर NSAIDs कैन ऑल्सो ट्रिगर, राइट. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अस्थमा, नेजल पॉलिप, एस्पिरिन सेंसिटिविटी, राइट. इट इन्वॉल्व्स ओवर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्रीन्स, right. So the answer here is triggered by aspirin. That is the answer which is incorrect. Now second question is, aprepitant, which is a drug used to prevent late onset chemotherapy induced nausea and vomiting, acts through which mechanism? So this is something again a rectification question. Aprepitant is an NK1 antagonist. It blocks the activity of substance P at NK1 receptors and is approved by US FDA for prevention of nausea and vomiting. Remember this. Okay, we have drugs ondansetron also, which is used in nausea and vomiting in cancer chemotherapy induced nausea and vomiting. Question number 3. A pregnant woman with a history of bronchial asthma is in third stage of labor. Which drug should be avoided in managing PPH? A pregnant woman है, ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है और PPH हो गया उसे. तो यहाँ पे हम कौन सी दवाई को नहीं देंगे? कौन सी दवाई नहीं देंगे? We will not give carboprost. Why? Because carboprost is a prostaglandin, and we know that prostaglandin will worsen the bronchial asthma. तो यहाँ पे कैच क्या है? ब्रोंकियल अस्थमा. प्रेगनेंसी तो चलो वो अलग चीज़ है, PPH वगैरह ये बीमारी है, लेकिन यहाँ पे कैच है ब्रोंकियल अस्थमा. चूंकि मरीज़ को ब्रोंकियल अस्थमा है, इसलिए हम यहाँ पे कार्बोप्रोस्ट नहीं देंगे. और दूसरा कैच है अवॉइड. तो यहाँ पे हम बाकी सब दे सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट गिव कार्बोप्रोस्ट विच विल कॉज ब्रोंकोस्पैज्म, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. A bronchial asthma patient on inhalational steroids presents with white patchy lesion on the tongue and buccal mucosa. So bronchial asthma के पेशेंट में जब हम स्टीरॉइड्स दे रहे हैं तो उसमें वाइट पैची हो गए. ये बहुत क्लियर है दैट दिस इज़ कैंडिडा इन्फेक्शन, या जिसको बोलते हैं ओरल थ्रश. सो ओरल थ्रश हो गया है पेशेंट को. सो व्हाट इज़ द ड्रग? ऑब्वियसली द आंसर इज क्लोट्रिमazole. वेरी इजी. दिस इज़ द ड्रग विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट oral thrush. You don't use greaseprevin, flucytosine and terbinafine to treat oral thrush. Next question. A male patient with COPD was prescribed theophylline. Okay, ठीक है. He noticed that his urine output has increased. Now this action is mediated through which receptor? Again, drugs acting on receptors, on enzymes. Please remember, always remember, ये questions आते हैं. So now we know theophylline acts actually on adenosine A1 receptor. ये we know this, and so the drug, the answer here is adenosine. ऐसे questions में आपको गलती करनी नहीं है. अगर इसमें गलती कर रहे हो तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Now which substance acts as a suppressor of DNA synthesis? मिटोमाइसिन नहीं, एक्टिनोमाइसिन एस्परजिनस एंजाइम इनहिबिटर होता है. एक्टिनोमाइसिन ये एंटीफंगल, मिटोमाइसिन भी एक्ट नहीं करती है. DNA सिंथेसिस को कौन करेगा? 6-mercaptopurine. वो नाम से ही हमें दिख रहा है 6-mercaptopurine है, ठीक है. ये मेटाबोलाइज होता है और ये बनाता है 6
थायोग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है एंड देन ये डीएनए आरएनए में घुस के फिर उसको साइटोटॉक्सिसिटी करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सप्रेसर ऑफ डीएनए सिंथेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ पेशेंट ऑन लिथियम डेवलप्ड हाइपरटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि लिथियम का खेल है। लिथियम का पेशेंट को थायजाइड्स दिए, तो लिथियम के पेशेंट को जैसे ही आप थायजाइड्स दोगे, he developed coarse tremors and other symptoms suggestive of lithium toxicity. So यहाँ पे the fundamental is lithium toxicity. Now what is the mechanism of this interaction? थायजाइड्स ने क्या किया? थायजाइड्स ने बेसिकली लिथियम टॉक्सिसिटी करी है। कैसे करी होगी लिथियम टॉक्सिसिटी? भाई उसका एक्सक्रीशन हो रहा था लिथियम का, अच्छा भला उसको रोक दिया होगा, उसका रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा दिया। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म, इट डज नॉट इनिबिट द मेटाबॉलिज्म। थायजाइड मेटाबॉलिज्म पे नहीं जाएगा, थायजाइड एड ऑन ड्रग नहीं है। थायजाइड कॉजेज वाटर लॉस देबाई इंक्रीजिंग लिथियम लेवल्स। यूजुअली आप लोग ना इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या आंसर है, पर ये आंसर गलत है। इट इंक्रीजेज द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ लिथियम, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड्स, या बोले इंटरेक्शन ऑफ थायजाइड्स विद लिथियम। नाउ विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिकेशन शुड नॉट बी रिकमेंडेड इन कंजंक्शन विद थियोफाइलिन? जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारा आंसर इरेथ्रोमाइसिन रहेगा। क्यों? क्योंकि इरेथ्रोमाइसिन इज अ ड्रग विच कैन इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन। ये इरेथ्रोमाइसिन हो गई, कीटोकोनाजोल हो गई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई, क्लोरप्रोपामाइड, ये कुछ ड्रग्स ऐसी हैं, फेनेटोइन, ये सब आपस में एक दूसरे के इंटरेक्शन करती रहती हैं, एक दूसरे को चैन से नहीं बैठने देती हैं। तो इरेथ्रोमाइसिन का नाम है, बाकी सीफोटैक्सिम, कॉट्रिमेक्साजोल, एमोक्सासिलिन सीधी सादी ड्रग्स हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। देन विच ड्रग has the tendency to accumulate in the cornea? This is very simple question. cornea में कौन सी ड्रग जाके बैठती है? That is क्लोरोक्विन। सो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। लेफ्लुनोमाइड नहीं करती है, मीथोट्रेक्सेट नहीं, सल्फासालाजिन नहीं। सो ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये सारी ड्रग्स यूज़ होती हैं, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जब आप चैप्टर पढ़ोगे यू विल सी दैट क्लोरोक्विन इज़ द ड्रग which actually goes and sits in the cornea, deposits in the cornea, right? Then we move on to the next question number 10. Which drug is not likely to cause pulmonary fibrosis? अब देखो फिर यहाँ पे इन्होंने ऐसे कर दिया ना, आपको समझना है not likely। एकदम से जब अपन पढ़ते ना, केयरलेस मिस्टेक कहाँ करते हैं? likely to cause pulmonary fibrosis। तो आप क्या करोगे? फटाक से पल्मनरी फाइब्रोसिस करने वाली दवाई पे क्लिक कर दोगे। तो वो आपको ध्यान रखना है, नॉट लाइकली। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी नहीं करती है। मेथिसरगाइड एर्गोट एल्कलॉइड करती है, ब्लियोमाइसिन तो करता ही करता है, नाइट्रोफिरेंटोइन करता है। तो द आंसर हियर इज मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इज़ द ड्रग। नाउ मेटफॉर्मिन एक सीधी सादी सी दवाई है जो डायबिटीज़ मेलाइटिस में यूज़ करते हैं। नोजिया वॉमिटिंग कर देती है, लैक्टिक एसिडोसिस कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा B12 की डेफिशिएंसी करती है, तो उसके लिए हम फिर B12 सप्लीमेंटेशन देते हैं, बट उसके अलावा पल्मनरी फाइब्रोसिस जैसा नहीं करती है। नाउ विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द डोज रिस्पॉन्स कर्व शोन इन द इमेज बिलो? इसके लिए मैं आपको डोज रिस्पॉन्स कर्व थोड़ा ध्यान से दिखा देती हूँ। क्वेश्चन देखो क्या है, स्टेटमेंट इज़ ट्रू, तो ये हमें ध्यान देना है। तो ये दिखाया है कि ड्रग ए है जो यहाँ से प्लॉट हो रही है, ड्रग बी प्लॉट हो रही है, ड्रग सी प्लॉट हो रही है। अब हमें पता है कि द पोजीशन इंडिकेट्स, क्या होता है पोजीशन? देखो, पोजीशन इंडिकेट्स पोटेंसी एंड हाइट इंडिकेट्स एफिकेसी। सो देखा जाए तो द ड्रग ए एंड ड्रग बी बोथ आर इक्वली एफिकेशियस, बट ड्रग ए जो है इस डोज में आके, इस डोज से यहाँ पे इसका मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है, एंड ड्रग बी का इस डोज में आके यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट आ रहा है इस डोज। सो एंड ड्रग सी तो उसका फ्लैटनिंग हो गया है डोज रिस्पॉन्स कर्व का। तो अब ऑप्शंस क्या हैं? सी इज़ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। सी एक और चीज़ है, राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द DRC indicates reduced potency and downward shift of the DRC indicates reduced efficacy। तो ये ध्यान रखते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, सी इज़ मोर पोटेंट देन ए, सी इज़ मोर पोटेंट देन ए, ये तो हट ही गया।
बी इज़ मोर पोटेंट देन ए, नो, बी पोटेंट नहीं हो सकता, बी इज़ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो हमारे पास एक ये ऑप्शन बचा है और ये ऑप्शन। अब देखो हमने ये पढ़ा था कि व्हेन इन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में डीआरसी शिफ्ट्स टू दी राइट, ये हमने पढ़ा था। और नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म में डीआरसी जो है फ्लैटन होता है। सो ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो डीआरसी राइट को शिफ्ट हुआ, इसका मतलब ये जो है बी, ये जो ड्रग बी है ये यहाँ पे बेसिकली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म शो कर रही है। ये यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है और ये यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है। तो एज अ रिजल्ट उसका फ्लैटनिंग भी हो गया एंड उसका पोटेंसी भी बहुत कम हो गई। सो दिस इज़ द आंसर हियर। नाउ विच एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन इज अनसेफ इन इन्फेंट? इन्फेंट में हम कौन सी दवाई नहीं दे सकते हैं? वी कैन नॉट गिव ब्राइमोनिडीन बिकॉज ब्राइमोनिडीन is basically an one second. Brimonidine is an alpha-2 adrenergic agonist which is used in treatment of glaucoma, and it is found to develop severe side effects in infants, and so it is unsafe in infants. So this is something you have to remember. The next question number 13, the apparent volume, ये बहुत interesting है. The apparent volume of distribution is very high. 6 लीटर पर kg का इसका apparent volume है. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये मतलब बॉडी की वॉल्यूम से भी ज़्यादा हो रखा है, प्लाज्मा की वॉल्यूम से तो बहुत ज़्यादा. सो विच इज़ ट्रू? जब भी देर इज़ अ वेरी हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लीज़ रिमेंबर हाई वीडी मतलब इट इज़ लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड एंड इंक्रीज्ड टिश्यू में चली गई है दवाई. सो हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन बिल्कुल गलत, कन्फाइंड टू वैस्कुलर कंपार्टमेंट बिल्कुल गलत, उसका इतना वीडी होता ही नहीं, एंड सेक्वेस्ट्रेटेड इन बॉडी टिश्यू ये बिल्कुल सही. सो द आंसर हियर इज दिस, इट इज सेक्वेस्ट्रेटेड इन द बॉडी टिश्यूज, राइट? दैट इज वाई इट इज गॉट अ वेरी हाई वीडी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which phase of clinical trial is focused on assessing the preliminary efficacy and determining the optimal dose? This is phase 2. Phase 2 concentrates on assessing the preliminary efficacy and determining the optimal dose. It is done on a small group of patients from 30 to 90, 100, and initial data on how the drug works and what are the side effects. Question number 15. What is the drug of choice for diphtheria carrier states? डिप्थीरिया के कैरियर स्टेट्स में आंख बंद करके इरेथ्रोमाइसिन को टिक करो. इरेथ्रोमाइसिन डिप्थीरिया की फेवरेट दवाई है, ठीक है? सो इरेथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन डिप्थीरिया कैरियर्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच मेडिकेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेंटेनेंस थेरेपी इन ओपियोइड विड्रॉल? सो मेंटेनेंस थेरेपी में हमारे पास ऑप्शन है ब्यूप्रेनॉर्फिन, नेलोक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन, अकैम्प्रोजेट. अकैम्प्रोजेट अल्कोहलिक एडिक्शन में काम आता है. नैल्ट्रेक्सोन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, नैलोक्सोन भी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है. मेंटेनेंस थेरेपी में वी हैव ब्यूप्रेनॉर्फिन. ब्यूप्रेनॉर्फिन क्यों? क्योंकि पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट होता है और ये मेंटेनेंस थेरेपी में यूज़ किया जाता है. बेसिकली हेल्प्स मैनेजिंग द विड्रॉल सिम्टम्स एंड क्रेविंग्स बाय बाइंडिंग टू द ओपियोइड रिसेप्टर्स. एक और ड्रग होती है मेथाडोन. मेथाडोन इज बेसिकली यूज्ड टू मेंटेन, प्लीज़ रिमेंबर, ओपियोइड एडिक्शन या ओपियोइड डिपेंडेंस, मेंटेन ओपियोइड डिपेंडेंस, ये मेथाडोन का काम होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाइपरटेंसिव पेशेंट स्टॉप्ड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन ड्यू टू ड्राई आइज, ड्राई माउथ एंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? अब मतलब उसने इस सारे साइड इफ़ेक्ट्स के कारण दवाई बंद कर दी. आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग ही डेवलप्ड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. नाउ हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, जैसे ही ड्रग बंद करेंगे तो कौन सी दवाई है इनमें से? टेलमिसार्टन, लिसिनोप्रिल कभी भी ऐसा नहीं करते हैं. दे डोंट प्रेसिपिटेट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. एम्लोडिपिन डजंट प्रेजेंट एंड वी नो दिस क्लोनिडीन, ये है कल्प्रिट ड्रग. क्लोनिडीन इज द ड्रग विच कॉजेज व्हाट यू से. क्लोनिडीन अल्फा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है. सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज करता है. जब एकदम से स्टॉप करते हैं तो देयर इज अ रिबाउंड इंक्रीज, और ये सिम्टम्स इसके साइड इफ़ेक्ट हैं. इसके अलावा क्लोनिडीन जो है ओपियोइड विड्रॉल में भी दिया जाता है. क्लोनिडीन का फर्स्ट डोज इफ़ेक्ट भी होता है. क्लोनिडीन बहुत सारे दूसरे भी इनके यूजेस हैं, उसमें डायबिटिक डायरिया में दिया जाता है. सो क्लोनिडीन इज़ अ वेरी वेरी, आई विल से क्लोनिडीन इज़ अ फेवरेट टॉपिक
ऑफ एग्जामिनर्स। क्लोनिडीन हमेशा पढ़ के जाना है। नाउ एग्जाम्पल ऑफ SNRI एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। सो SNRI मतलब ये हो गई सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन में देखो पैरोक्सिटिन, रिबॉक्सिटिन, ब्यूप्रोपियोन एंड ट्रामाडोल। ट्रामाडोल तो नहीं है, सो ट्रामाडोल हमने काट दी यहाँ से। अब ब्यूप्रोपियोन नहीं होगा, ब्यूप्रोपियोन नहीं है। आंसर यहाँ पर होता है रिबॉक्सिटीन। रिबॉक्सिटीन इज द drug which actually acts on the selective norepinephrine reuptake inhibitors only. The next question is, what is the drug for HIV induced lipodystrophy? Now this is tesamorelin. This is basically a synthetic growth hormone releasing hormone analog, and it is specifically used in HIV associated dystrophy. So this is the primary indication and approved for this particular indication. The last question in this series is, a 48-year-old man with a history of chronic gout with recurrent episode of painful attacks despite being on allopurinol. So see, the patient is chronic gout and the patient is taking allopurinol, right? Now physicians suggest a drug that inhibits the resorption of uric acid in the proximal tubule. तो कौन सी ड्रग है इसमें से जो रिजॉर्प्शन इनहिबिट करती है? इट इज़ सो इजी, इट इज़ प्रोबेनिस्टेट। फेबिक्सॉक्सटेट नहीं है, xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर। रास्पबेरी के इसका भी मैकेनिज्म अलग है। कॉल्चिसिन तो अलग ही मैकेनिज्म है इसका, ये तो इन्फ्लेमेशन को इनहिबिट करती है। सो द ड्रग दैट द आंसर हियर इज प्रोबेनिस्टेट। दिस इज द ड्रग दैट विल reduce the resorption of uric acid in the proximal tubule. So with this we come to an end of the part 1 series and MCQ part 1, in which we have taken 20 MCQs. Daily I'll be posting videos like this so that you can go through the MCQs with me and you will be benefited.